Hello students, today we will discuss about Bohr's atomic model. Bohr atomic model ने सब तो पहला हाइपोथेसिस दित्तियां सी, कुछ पोस्टुलेट्स दित्तियां सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੁਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰਾਬੈਕਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਹਰ ਨੇ। ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟੁਲੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੁਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੀਬਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰਾਬੈਕਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਗਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ। out of all the permitted orbits in a classical mechanics, ਕਹਿੰਦੇ in a classical mechanics ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ permitted orbits ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ electron exist in only those orbits in which its angular momentum becomes integer multiple of h upon 2 pi। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਡ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਿਕਮਸ ਇੰਟੀਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h upon 2 pi ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੇਡੀਏਟ ਐਨੀ ਐਨਰਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਪਰਮਿਟਡ ਆਰਬਿਟਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਕਮਸ ਇੰਟੀਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h by 2 pi, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ h upon 2 pi ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R into P। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। P ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ L ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, RP ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ R ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 90। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RP, L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ RP, ਜਾਂ ਫਿਰ L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, RMV ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਨ ਦ ਪਰਮਿਟਡ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, h upon 2 pi ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ h upon 2 pi, ਐਂਡ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਤਲਬ n, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਬਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਸਪੀਡ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰਾਬੈਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਹਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਡ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? NH/2π, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। ठीक है, तो उन्हें इस तरह के ऑर्बिट्स नूं की बोलता सी? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलता सी। ते इलैक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन रिगार्डिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स इज नोन एज स्टेशनरी रिवोल्यूशन। समझ आ गई? पहली गल, पहली हाइपोथेसिस पता लग गई। पहली हाइपोथेसिस दे विच उन्हें कंप्लीट करता। दूजी हाइपोथेसिस दे विच उन्हें की कहा? कहंदे भी ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਬਿਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਲੋਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ EK ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਿਆ EI। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ EM ਵੇਵਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਹਾਈਐਸਟ EI माइनस EK इज इक्वल टू HF। क्लीयर हुई मेरी गल? पता लग्या भी कहता भी जो इलैक्ट्रॉन ने जो ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम द हायर लैवल टू लोअर लैवल दैन वो अपनी एनर्जी नू रेडिएट करूगा इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी नू रेडिएट करूगा इन दी फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इन जिन्हों किहदे विच लिखता HF। ठीक है, इलैक्ट्रोमैगनैटिक एनर्जी वेव्स रेडिएट करूगा इन दी टर्म्स ऑफ HF, H न्यू। ओके, न्यू लिख सकते हो फ्रीकुएंसी नू या फिर F भी लिख सकते हो। क्लीयर होया? मेरी गल समझ आई भी जो हाईएस्ट टू लोअर आंदा है दैन वो अपनी एनर्जी नू रेडिएट करता इन दी फॉर्म ऑफ EM वेव्स इन टर्म्स ऑफ HF फ्रीकुएंसी। समझ आ गई गल दी? क्लीयर हुई? जिमें कि हुण मान लो मेरे को इत्थे 30 जाउल है, ठीक है, इत्थे अपने को 20 जाउल आया, मतलब उन्हें कितनी एनर्जी नू ट्रांजिस्ट करता, मतलब रिलीज़ करता, मतलब कि रेडिएट करता, कितनी एनर्जी नू रिलीज़ करता? 10। क्लीयर हो गया? हुण अगले दे विच वो की कहंदा वाई एब्जॉर्बिंग, जे वो सेम एनर्जी नू मान लो लोएस्ट एनर्जी ते उन्हें हाईएस्ट एनर्जी ते जाना है, वो सेम एनर्जी नू एब्जॉर्ब करूगा दैन वो हाईएस्ट एनर्जी लैवल ते पहुँच जूगा। उन्हें ऐ कहा सी भी जे तो अपने हायर टू लोअर आना दैन उन्होंने एनर्जी रिलीज़ करनी पू, जे वो लोअर टू हायर जाना है दैन वो एनर्जी नू की करूगा वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नू की कर लूगा, एब्जॉर्ब कर लूगा। ठीक है, हुण 20 जाउल तो हैगी है, 10 उन्हें एब्जॉर्ब कर ली दैन वो 30 जाउल के नाल हाईएस्ट एनर्जी लैवल के चला गया। देखो मैंने लिखा भी इस तरह ही होया। When electron makes a transition from EI higher energy level to lower energy level, then it radiates EM energy equal to HF in terms of frequency, क्योंकि H is a constant, Planck's constant. Why? Absorbing same energy it can go lower to higher orbit। मैं एक important information तुहानू देनी भुल गई। देखो ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ आप सेकंड पोस्टुलेट समझ आ गई,
फस्ट पोस्टुलेट दे विच उहने ये चीज़ कही सी ना भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन उही परमिट होगा इन दैट ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम बिकम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये वाली जिहड़ी पोस्टुलेट सी ये कित्थों आई सीगी, ये एल्बर्ट आइनस्टाइन एंड प्लैंक्स दी थ्योरी तो आई सी जदों उन्होंने फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नूं सर्च किया सी। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का एक्सपैरीमेंट दिता सी ना, उस थ्योरी के आइडियाज़ तो ये वाली थ्योरी प्रूव हुई सी भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन होगा वही ऑर्बिट दे विच परमिट करूगा जिहदा इंटीग्रल मल्टीपल h/2π होगा। समझ आ गई? ये किहने दित्ती सी, किहदी थ्योरीज तो आई सीगी ये वाली गल, जिन्हें उन्हें अपनी पोस्टुलेट दे विच ऐड कर लिया सी, प्रूव करता सीगा बोहर ने। मान लो ये आई सी प्लैंक एंड एल्बर्ट आइनस्टाइन की फोटो इलैक्ट्रिक थ्योरी तो, क्योंकि जिहड़ा रदरफोर्ड सीगा उन्हें तो इस तरह कहता सीगा भी जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ वो हौली हौली न्यूक्लियस दे विच कंज्यूम हो जाऊगा, है ना, भी अपनी एनर्जी नूं कंटीन्यूअसली रेडिएट करता जाऊगा। उस टाइम जिहड़ा अपने कोल ये वाला जिहड़ा बोहर ने ओवरकम करता सी इस थ्योरी नूं, किहदी थ्योरी तो नहीं सी ये चीज़, प्लैंक एंड आइनस्टाइन की थ्योरी तो। समझ आ गया? फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के ये आइडिया तो, ये आइडिया के कंबीनेशन तो ये वाली चीज़ प्रूव हुई सी। पता लग गई गल? दोनों पोस्टुलेट समझ आ गई। पहले दे विच उहने ये कहा सी भी उही इलैक्ट्रॉन्स परमिट होणगे इन दैट ऑर्बिट्स जिन्हां दा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π होगा। अगले दे विच उहने की कहा सी भी जे हायर टू लोअर जाना दैन एनर्जी रिलीज़ करनी पू, जे लोअर टू हायर जाना दैन एनर्जी नूं की करना पऊगा, गेन करना पऊगा। दोनों पोस्टुलेट समझ आ गई। हुण इहदे नाल ही आपां ना रेडियस एंड एनर्जी डेरिवेशन भी करदे आ जिहड़ी आपां नूं बोहर ने दित्ती सी। देखो अपने कोल आ गई, आपने एक ऑर्बिट लै लिया, आ ऑर्बिट अपने न्यूक्लियस लै लिया, तुहानूं पता ही है सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा ना। हुण अपने सिंपल रेडियस एंड एनर्जी करनी है, वो किस तरह उन्होंने डेरिवेशन करवाई सी। देखो जिहड़ा आपां नूं पता है भी न्यूक्लियस के उपर भी पॉजिटिव चार्ज हुंदा, जे अपने चार्ज एट न्यूक्लियस कढ़ना होवे किवें कढ़ांगे? बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ए, एन आपां नूं पता नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदा, नंबर ऑफ चार्ज, तो ये की होगा एटॉमिक नंबर देखा। एटॉमिक नंबर नूं किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं? Z। तो मेरे को जिहड़ा चार्ज एट न्यूक्लियस आ गया वो क्या आ गया? ZE आ। समझ आ गया? Q इज इक्वल टू ZE। हुण पता की है, जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस दैन उत्थे की अप्लाई हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तुहानूं पता ही है ना, +1 दे विच मैंने ये चीज़ करवाई हुई है तुहानूं भी सेंट्रीपिटल फोर्स की हुंदी है। भी सेंट्रीपिटल फोर्स वो हुंदी है भी जो कोई बॉडी सर्कल दे विच मूव करती है टूवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहते सेंट्रीपिटल फोर्स किहदे नाल मेनटेन हुंदी है? बाय द कोलंबियन फोर्स। हुण कोलंबियन फोर्स तुसीं कहोगे किस तरह लै ली? देखो न्यूक्लियस के उपर भी चार्ज लग रहा है, इलैक्ट्रॉन कोल भी चार्ज है, दो चार्जिज हो गए। दैन उन्होंने विच किहड़ी फोर्स लग रही है? आपां नूं पता ही है कोलंबियन फोर्सिस लग रही है। दैन सेंट्रीपिटल फोर्स नूं कोलंबियन फोर्स मेनटेन कर रहा, दैन इक्वल हो गया। आपां नूं पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा? mv²/r इज इक्वल टू इहदा की हुंदा? K Q1 हुण Q1 की वैल्यू ZE आ गई एंड Q2 की वैल्यू की आ गई? इलैक्ट्रॉन E आ गई। तो E आ गई अपने को सिंपल लिखता। दैन ZE²/r² के नूं लिख सकते 1/4πε0। हुण तुसीं बोहर मॉडल ने की कहा सीगा भी जिहड़ा एंगुलर मोमेंटम है MVR इज इक्वल टू किहदे हुंदा? NH/2π। ये तो आप V की वैल्यू कढ़ लैंदे जो V की वैल्यू कढ़ ली NH/2π MR वो अपने पहले इक्वेशन के पुट करती। देखो M V² है ना, V², दैन V की वैल्यू सिंपल पई हुई है N² H² 4π² M² R²। देखो लिख लिया, R एज इट इज़ रह गया, आ वाला R इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/4πε0 R²। हुण कटदा की कुछ है? R² नाल R² कट आउट, तो फिर होर की कुछ कटदा है? M नाल M दी 1 स्केयर कट आउट, तो π² नाल 1 पाई कैंसल, 4 नाल 4, बाकी की बच गया अपने को R की वैल्यू कट ली, आ वाली R की वैल्यू कट गई, मतलब अपने को बच गया N² H² इज इक्वल टू की बच गया? 1 M भी रह गया, इत्थे M रह गया ना, 1 M कट्टे गया इज इक्वल टू की रह गया? ZE²
ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੂਗਾ NH क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एन स्केयर एच स्केयर एप्साइलन नॉट है ना इज इक्वल टू की रह गया ZE स्केयर M R इधर रख लो, इनू सारे नू इधर लियाओ। दैन अपने को वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू N स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइलन नॉट अपॉन पाई M। एक अपने को पाई भी रह गया सी सच, एक अपने को पाई भी रह गया ना इत्थे। दैन पाई MZE स्क्वायर ये तुसी कैलकुलेशनस कर ही सकते हो। ओके बेटा ये अपने को रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देखो अपन एन का पता होना चाहिए, एन किमें आऊगा, एन की वैल्यू भी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के विच इलैक्ट्रॉन है या फिर सैकेंड ए लिख लाँगे। एच स्क्वायर इज अ कॉन्सटेंट, प्लैंक कॉन्सटेंट 6.63 × 10 - 34। एप्साइलन नॉट की है 8.854 × 10 - 12। पाई की वैल्यू 3.14, M की वैल्यू मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना होंगे 9.1 × 10 - 31। Z की वैल्यू तुसी की लिखोगे तो जिन्ना दिता होगा एटॉमिक नंबर किस हिसाब नाल दिता मतलब हीलियम हाइड्रोजन जो भी दिता वो पुट करोगे। इलैक्ट्रिक चार्ज तुहानू पता ही है 1.6 × 10 - 19। देखो एच स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट, E स्क्वेयर कॉन्स्टेंट। तो R किधे डायरैक्टली है N स्क्वेयर अपॉन Z। तो मैंने यही लिख लिया भी रेडियस ऑफ ऑर्बिट किधे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, R इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z। हुण ये तो ही आप एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण एनर्जी आपको पता टोटल एनर्जी किहदे कोल हुंदी, किनेटिक एनर्जी वो मूव कर रहे हैं एंड हौली हौली वो इलैक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट के विच पोजीशन भी लैंदा जा रहा है। दैन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दैन टोटल एनर्जी किहदे कोल आ गई E इज़ इक्वल टू K अपॉन U। K मीनस किनेटिक एनर्जी, U मीनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन पता ही है K की वैल्यू की होंगी है हाफ MV स्क्वायर एंड U की वैल्यू होंगी माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। माइनस क्यों लिया क्योंकि अपने को इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलैक्ट्रॉन वैसे अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नैगेटिव ही आती है, इस करके अपने को आ गया नैगेटिव 1/2 MV स्क्वायर माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। देखो मैंने पुट करता सब कुछ हो मी हाफ MV स्क्वायर K की वैल्यू मैंने पुट करती 1/4 पाई एप्साइलन नॉट ZE है ना Q1 ZE अपॉन R आ गया फ्रॉम वन इक्वेशन। हुण तुसीं वन इक्वेशन दोबारा देखो, देखो इतों मैं ना MV स्केयर की वैल्यू कट सकती है जे मेरे को एक R आ वाला R कट जे। देखो मैंने लिखी हुई है दोबारा, जे एक R कट गया तो आ बच गया, बट मैनू हाफ MV स्केयर की वैल्यू चाहिए आ तो मैंने हाफ नाल दोनों पासे मल्टीप्लाई करता। यही इक्वेशन नू तुसीं इहदे विच पुट कर दो। जो ये पुट करोगे दैन मेरे को आ गया E इज़ इक्वल टू 1/8 पाई एप्साइलन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R माइनस उमें लिखता 4 एप्साइलन। हुण तुसीं कट कॉमन की निकलता ZE स्क्वायर अपॉन 8 दे 4 की कॉमन निकलू 4 पाई एप्साइलन नॉट R। बाकी की बच गया 1/2 8 का 2 रह गया माइनस 1। ये जो तुसीं सॉल्व किया दैन माइनस दे विच आंसर आ गया। हुण तुहाडे कोल R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू तुसीं आ वाली पुट कर सकते हो। R की वैल्यू तुसीं आ वाली पुट कर दो, पुट करोगे तो कोल आ वाली चीज़ आ जूगी, आ वाली चीज़ आ गई ना अपने कोल आ वाली चीज़। जो आ वाली चीज़ आई दैन अपने कोल की कुछ कटदा है ओनली एप्साइलन नॉट द स्क्वायर हो गया। जिहड़ी चीज़ कटदी है घटा दो, देखो Z द स्क्वायर हो गया है ना, M रह गया, पाई नाल पाई कैंसल हो गया है ना। तो अपने कोल होर की कुछ कटदा है माइनस ZE माइनस Z स्क्वायर E दी 4 आ गया M अपॉन 8 एप्साइलन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर Z स्क्वायर। हुण इहदे विच भी देख लो तुसीं कॉन्स्टेंट कौन कौन है, M मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट, इलैक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टेंट, Z की वैल्यू नहीं कॉन्स्टेंट, जेड़ा भी आ सकता एटॉमिक नंबर कोई भी आ सकता ना नंबर हाइड्रोजन हीलियम। एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट, N की वैल्यू नहीं कॉन्स्टेंट, N की वैल्यू कोई से मर्जी ऑर्बिट च हो सकता, H की वैल्यू कॉन्स्टेंट। मैं तुहानूं सारी वैल्यूज पहले दस चुकी हाँ। तो एनर्जी अपनी किहदे प्रपोर्शनल है Z स्क्वायर एटॉमिक नंबर अपॉन N स्क्वायर किहड़े ऑर्बिट दे विच लाई कर रहे हैं। देखो फॉर हाइड्रोजन एटम जे तुहानूं कह देण भी तुसीं एनर्जी कड्डो हाइड्रोजन एटम की, किवें कड्डोगे हाइड्रोजन एटम के लिए मास की वैल्यू कितनी होंदी है वही 9.1 × 10 - 31, E की वैल्यू 1.6 × 10 - 19, Z की वैल्यू कितनी होगी 1, हाइड्रोजन का 1 होंदा है,
8 एप्सिलॉन नॉट 8.54 इन 10⁻12 एन की वैल्यू के किहड़े ऑर्बिट दे विच लाई कर रहा है ये नहीं आपां नूं पता एन स्क्वायर एज इट इज़ एच की वैल्यू 6.63 इन 10⁻34 ये सारे तुसीं पुट करको इन दी इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच तुहाडा आंसर आ जाऊगा एनर्जी की वैल्यू आ गई -13.6 अपॉन एन स्क्वायर नहीं ना अपन पता इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनी एनर्जी आ गई इलैक्ट्रॉन वोल्ट तुसीं जिन्ने मर्जी दी कट सकते हो मतलब हीलियम की एन Z की वैल्यू 2 पुट करके जिन्ने मर्जी ऑर्बिट्स की तुसीं एनर्जी फाइंड आउट करते जाओगे दैन तुहाडे कोल एनर्जी आती जाऊगी। समझ आ गई बेटा? जे तुहानूं ये वाला टॉपिक चंगी तरह समझ आ गया दैन कमेंट बॉक्स के जरूर दसो भी तुहानूं ये वाली चीज़ चंगी तरह समझ आउट आ गई क्योंकि अज अपने सिर्फ किया है बोहर एटॉमिक मॉडल वो मैंने पोस्टलेट्स करवाइया चंगी तरह उस तो बाद मैंने तुहानूं करवाया रेडियस कि मैं हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस एंड हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ओके बेटा समझ आ गई? थैंक यू।